بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. جی آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ اوکے الحمدللہ. تو انشاءاللہ لیٹس کنٹینیو، شروع کرتے ہیں ہماری ریویو یا ریویژن. تو اسم کی 4 حالتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں سے 2 کے بارے میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. کل ہم نے اسم کی کون سی 2 حالتوں کے بارے میں ڈسکس کی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ معرفہ اور نکرہ. جی، یعنی وسعت، اور وسعت میں معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے. اور بائی ڈیفالٹ ناؤن جو ہے وہ معرفہ ہوگا، رائٹ؟ جی بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوگا، نکرہ ہوگا. جی اور اس کے بعد ہم نے جینڈر یعنی جنس کے بارے میں، اور جنس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 قسم کی جنس ہوتی ہے، اس میں مذکر اور مؤنث، یعنی میسکولن اینڈ فیمینن. تو بائی ڈیفالٹ کون سا ناؤن ہوگا، مذکر یا مؤنث؟ مذکر. جی پچھلے اسباق کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے بالکل آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. جی اچھا، تو مؤنث کی کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہے؟ 7 میرا خیال ہے. 7 اقسام مؤنث کی. دو سوری، دو. 2 پڑھی ہیں، دو وہ حقیقی اچھا، اور 2 سماعی. کون سی؟ حقیقی اور سماعی. نہیں، حقیقی اور غیر حقیقی آئی تھنک. جی ہاں، اور پھر غیر حقیقی میں جو ہے وہ اس میں آگے ہے. علامتی ہے اور سماعی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اب جو غیر حقیقی میں جو علامتی ہے، 3 طرح کی علامات ہوتی ہیں. تو وہ کون سی علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناؤن جو ہے وہ مؤنث ہے؟ تائے مدورہ جی، اور تائے مدورہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف مقصورہ اور الف ممدودہ. ٹھیک ہے. اور الف ممدودہ کی کوئی مثال دیں گی آپ، یا کوئی بھی؟ سوری، یا اینی ون؟ صحراء. ٹھیک ہے. اس کے بعد سماؤ. سماء. جی سماء. ابناء. اسی طرح سے زرقاء، بیضاء، سوداء، جتنے بھی کلرز ہیں. فقراء، زملاء. ایکسیلنٹ جی. کالیگز، علماء. ویری گڈ. اوکے الحمدللہ. تو آج ہم انشاءاللہ جو اسم کی تیسری حالت ہے عدد، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. عدد میں ہم نے پڑھا ہے کہ عدد یا تو مفرد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا. اور پلورل میں جمع میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو یا تو سالم ہوگا یا مکسر ہوگا. جی سالم اور مکسر، اس کے بارے میں کسے یاد ہے؟ سالم جو ہوتا ہے جب اس کی جمع بناتے ہیں تو اس کے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ سیم رہتے ہیں، آگے اونا یا اس طرح سے کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. اور جی، جو اونا اور اینا کی ساؤنڈ سے ہم پہچانیں گے. جی بالکل. جی، اور جو دوسرا ایک مکسر. سالم تھا، اور جی مکسر جو ہوتا ہے مکسر، اس کی ٹوٹ جاتی ہے، جمع جب بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مطلب اس یعنی میں اس وہ کی ورڈ شکل جو ہے وہ چینج تبدیل ہو جاتی ہے. چینج ہو صحیح. جاتا ہے. جیسے جی جی جی. کتابن، کتبن، کتبن. قلم سے اقلام. اسلام. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے. اور جو جمع ہوتی ہے سالم، وہ عام طور پہ کس سے بنائی جاتی ہے؟ واحد سے. ویری گڈ. اور مطلب گرامر کے کون سے آسپیکٹ سے ہم اس کو بناتے ہیں؟ لائک ہم اسے تنوین ختم کر کے جی زبر لگاتے ہیں آخری حرف پہ، اور واو نون. بالکل، پیش اور واو نون. ہاں، اونا. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، میں شاید میکنگ مائی سیلف کلیئر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم میٹیریل سے بناتے ہیں یا صفات سے بناتے ہیں جو جمع سالم ہوتی ہے؟ میٹیریل سے بناتے ہیں. جمع سالم. صفات سے بناتے ہیں، اور جی، مکسر جمع میٹیریل سالم سے. جو ہے وہ صفات سے، ایڈجیکٹیو سے. جی بالکل. جیسے مومن، یہ بھی ایک صفت ہے. کافر ہونا، مسلمان ہونا. جی، صالح ہونا، صائم، یہ ساری صفات ہیں. اور جو بروکن پلورل یعنی جمع مکسر ہوگی وہ عام طور پہ میٹیریل سے بنائی جاتی ہے. کوئی بھی چیز جیسے لائک
किसी चीज़ का भी, जैसे किताब भी मटेरियल से बनती है, कलम भी मटेरियल से, बाकी मोबाइल फ़ोन जो भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं वो सारी मटेरियल से बनती है। माशाल्लाह। ओके, उसके बाद तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नाउन क्या होगा, वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा? वाहिद वाहिद। होगा। वाहिद होगा, जब तक कि हम उसका मुसन्ना या जमा उसकी ना बनाए। ओके, और मुसन्ना बनाने का क्या तरीका है? आनी आनी जैसे अलिफ और नून लगा कलिमानी, अलिफ पे अलिफ, ज़बर और नून पे आनी ज़ेर। आनी आनी और नून जी लगा बिल्कुल, अलिफ से पहले ज़बर होगी और नून के नीचे हमेशा ज़ेर होगी। ज़ेर। तो ये आनी, दो साउंड्स होंगी इसकी, आनी है नहीं ऐनी। आईनी आईनी, आनी आईनी आईनी, ठीक है, वेरी गुड। तो ऊना ईना ईना, आनी आईनी आईनी। इनफैक्ट हमें मुसन्ना और फिर प्लूरल की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मुसन्ना में हम देखेंगे कि आनी आईनी आईनी, ऊना ईना ईना, यानी किताबानी किताबैनी किताबैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। ओके, जो मुसन्ना है डुअल, ये हम किस किस्म के अस्मा की बना सकते हैं? सिफात की या मटेरियल की या किस चीज़ की बना सकते हैं? सिफात की। सिफात मटेरियल मटेरियल और अगर मैं कहूँ कि दोनों की बना सकते हैं? दोनों की भी बन सकती हैं। दोनों की ही बनती है जी, दोनों की बनती है। यानी डुअल जो है वो हर नाउन जिसका पॉसिबल हो, जहाँ मखलूक़ात की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वाहिदुल क़हार हैं और अल्लाह समद हैं, और लेकिन जब हम बात करते हैं मखलूक़ात की, तो उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम हर नाउन की जो है वो डुअल बना सकते हैं, चाहे वो सालिम हो या मुकस्सर हो। जैसे मोमिन से मोमिनान, मुस्लिम से मुस्लिमान, सालिहुन से सालिहान, और इसी तरह से किताबुन से किताबान, और कलमुन से कलमान, और वालिदुन से वालिदान। वालिदान वालिदान, हाँ जी, वालिदानी वालिदैनी वालिदैनी, और अबुन से अब ना नानी। अबवानी, अबुन से अबवानी। वानी। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। के अबवानी अबवाइनी अबवाइनी। अच्छा, जब अबवानी अबवाइनी अबवान की बात होगी तो दैट इंक्लूड्स बोथ, उसमें माँ और बाप दोनों शामिल होते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना कि तगलीब यानी उसलूब ये है कि अगर मिक्स्ड जेंडर होगा तो उसमें सीगा जो इस्तेमाल किया जाएगा वो मुज़क्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुरान मजीद में अबवाइन का यानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और वालिदान वालिदैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो इससे मुराद दोनों पेरेंट्स हैं, माँ और बाप दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो कभी भी ये ना सोचना चाहिए हमें कि अबवान से मुराद खुदा न खास्ता दो मतलब बाप होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे मुराद है दोनों माँ और बाप। जी क्लियर? ना ठीक है, तो अगर हम कोई इसम जो फेमिनिन होगा उसके में आपने मुझे कोई नहीं बताया, जैसे कोई जैसे जन्नतुन है तो उसकी जो है वो डुअल क्या होगी? जन्नतानी जन्नतानी। जन्नतानी, ठीक है, ओके। मुस्लिमतुन की क्या होगी? मुस्लिमतानी जी, और कलिमतुन की होगी? कलिमतानी। कलिमतानी, माशाल्लाह, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नोट्स आपके पास इंशाल्लाह, आई एम श्योर कि आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी फारिग आपको टाइम मिले तो ये ज़रूर आप रिव्यू कर लिया करें। जैसे अब डुअल में हमने देखा कि किताब उनसे आनी ऐड करेंगे तो ये किताब आनी, और फेमिनिन के साथ भी हम आनी ही ऐड करेंगे, लेकिन अगर ता मरबूता होगी तो वो रेगुलर ता में तब्दील हो जाएगी और वो बन जाएगी तानी, यानी वो मफ्तूहा बन जाएगी, जैसे यहाँ पे है जन्नतुन जन्नतानी। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कलम से कलमानी, मुस्लिम से मुस्लिमानी, वालिद से वालिदानी, यानी दोनों पेरेंट्स, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, और कलिमतुन से कलिमतानी। और अलजमा उसमें हमने देखा कि या तो जी उस्ताद जी सवाल ये आपने मुसन्ना से जब हमने बनाया था कलमानी, तो उसने आपने कहा था कलमैनी कलमैनी, इस तरह से जी ना, जी बिल्कुल, तो वो हाँ सब हाँ हाँ मुसन्ना हाँ से बनेगा? हाँ, मुसन्ना से जो साउंड आएगी आईनी वो आईनी आईनी की आईनी कहाँ आएगी। से बनेगा जी? जी मतलब ये डुअल से बनेगा बिल्कुल।
आईनी आईनी वाला डुअल से बनेगा और ऊना ऊना वाला मुफरत से बनेगा। ऊना ऊना ईना, अच्छा, ऊना ईना। जी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, जी बिल्कुल, हाँ। और मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी, जी बिल्कुल, मुस्लिमैनी। तो मतलब डुअल से जो जमा बनेगा वो आइन 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 बनेगा, आईनी और की जो साउंड पे, जी जी जी। बस जैसे तो ना वलदैनी यतीमैनी कुरान मजीद में जो सूरह कहफ में है, तो यतीमैनी आप देखें ना, तो ऐनी, तो डुअल की जब भी साउंड आएगी वो ऐनी के साथ आएगी। तो आनी ऐनी ऐनी, ये हो गई मुसन्ना की, आनी ऐनी ऐनी। और जब हम जमा मुज़क्कर सालिम की बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगी ऊना ईना ईना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। इसी तरह से काफिरूना काफिरीना काफिरीना, सालिहूना सालिहीना सालिहीना। ये इंशाल्लाह हम आगे आप जब एराब का लेसन देखेंगे तो फिर डिटेल में आगे उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जमा में आप 2 दफा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईना या ईना? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मरफू मनसूब और मजरूर 3 अच्छा, हालतें होती है ठीक ना है, इसम की, ठीक है, स्टेटस जज़ाकल्लाह, हमेशा 3 होगा। जी, वही आकम ये, याद आ तो गया, वो याद। मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर एक आदत बन गई है कहने की, आनी ऐनी ऐनी ऊना ईना ईना, क्योंकि या तो वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। मजबूर होगा, जी। जी, तो जज़ाकल्लाह। ये वकास भाई मेरे ख्याल में ये आपके सामने अब आ गया कि जब हम जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे तो इसमें ऊना की साउंड होगी, तो उसमें वाव और नून, यहाँ पे नून मफ्तूह है यानी नून पे ज़बर होगी। तो डुअल में नून पे ज़ेर होती है और जमा में सालिम में नून पे ज़बर होती है। तीनों हालतों में ज़बर होगी, काफिरूना काफिरीना काफिरीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो तीनों हालतों में इसके ऊपर ज़बर होगी। जी कोई क्वेश्चन? ये फर्दर एग्जांपल्स है हमारे सामने, मोमिनुन से मोमिनूना, मुनाफिकुन से मुनाफिकून, इसी तरह से सालिहुन से सालिहूना, साबिरुन से साबिरूना, आबिदुन से आबिदूना। तो ये इनिशियल लेसन्स थे, इसलिए यहाँ पे आप देखें कि हम किस तरह से हम चलें, आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ें देखी। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट ऊना ईना ईना नहीं दिया, बल्कि हमने वो डिस्कस किया स्टेटस में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएँ। तो अब इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी कि हम क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी बेस बन जाएगी, फिर आगे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। जी, मुअन्नस का मैं आपसे पूछना भूल गया, चलें लेट्स सी। तो मुअन्नस की जमा सालिम का भी कोई ख़ास तरीका है क्या? आए आके मुनव्वरा नहीं हटा आवाज के, आई। बोलते हैं आपके गोल का खोल लेंगे। जी बिल्कुल, इसको जो ता मुदव्वरा है या मरबूता है वो मफ्तूहा में चेंज हो जाएगी, यानी मटीरियल या सिफात। मुदर्रिसूना क्या होगा? जी मुदर्रिसूना सिफात में आएगा। इंसान इंसान जो है वो मटेरियल से बना है, और इंसान की जितनी भी सिफात हैं वो कुछ भी हो सकता है। इंसान मुदर्रिस भी हो सकता है, मुहंदिस भी हो सकता है, जितने भी उसके मतलब आप कह सकते हैं प्रोफेशंस हैं, या जो भी उसकी सिफात हैं, यानी सादिक भी हो सकता है, कादिब भी हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी सिफात होंगी। जब इंसान की बात की जाएगी तो वो फिर मटेरियल होगा। इज दिस क्लियर? ओके ओके। तो करेंगे समझ में नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंसान जो है किसी सिफात से है, फिर आप फिर कह रहे हैं कि मटेरियल, दोनों डिफरेंट इंसान जो इंसान है, आदमी है, जैसे मैं और आप हैं, हम लोग मटेरियल से बने हुए हैं। अच्छा, किस मटेरियल से बने हुए हैं? कुरान मजीद में इसका जिक्र है, तीन, या तीन से, हम तो मिट्टी से बने हुए हैं, ठीक है। तो तीन इज अ मटेरियल, ठीक है। अब हम जो इंसान होगा वो तो मटेरियल से बना हुआ है, और इंसान की जमा फिर क्या होती है? उनासन होती है। उनासिया भी है और उनासन भी है, तो वो उसकी जमा जो है वो मुकस्सर आएगी इंसान की। इसके अलावा इंसान के बारे में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो उसकी सिफ्त होगी। क्लियर है अब? वही आकुन जी, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मोमिनतुन है, तो ये भी एक जैसे किसी भी वुमेन की ये उसकी सिफत है, राइट। इसी तरह से अल्लाह ना करे जैसे मतलब जो नॉन बिलीवर्स मुनाफिक भी हैं और सालिहातुन भी हैं, तो ये सारी जो है ये सिफात में आएंगी फिर।
आतुन, ठीक है। अच्छा, इसका किसी को मंसूब और मजरूर की हालत याद है? जी आतुन की आते हैं दोनों में से दोनों हालतों में आतिन आएगा। जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, सही हो गया। तो ये होगा मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन। तो आतुन आतिन आतिन, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, आतुन आतिन आतिन। ओके, ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर उसकी असली हालत बरकरार ना रहे तो फिर जो है वो जमा यानी ब्रोकन प्लूरल होगा या जमा मुकस्सर होगा, जैसे किताबुन से कुतुबुन और कलमुन से अकलामुन। अब जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है। अब हमने उसका देखा है, सालिम का तो बहुत आसान है, ऊना ईना ईना, लेकिन मुकस्सर के लिए हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है? इसमें डिफरेंट जो है वो अवजान होंगे, पैटर्न्स होंगे, तो वो पैटर्न से हम जो है वो उसकी जमा बनाने के काबिल होंगे। कुछ पैटर्न्स हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे फ़ुऊलन। तो फ़ुऊलन के पैटर्न पे लफ्ज़ जैसे है क़ुलूबुन है, तो ये क़ल्बुन की जमा होगी क़ुलूबुन। तो और इसका पैटर्न क्या है? फ़ुऊलन। इसमें अब इंशाल्लाह थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट, लेकिन इंशाल्लाह जब हम आप लेसन्स कर लेंगे ना, इसका आगे के जो 2-3 लेसन्स हैं, तो उसके बाद आपको ज़्यादा समझ भी आ जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा कि कितने मतलब किस तरह से ये जो है जमा बनाई जाती है। जैसे रजुलुन से रिजालुन, अब रिजालुन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। फ़िआलुन जैसे किलाबुन, इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं तो इस पैटर्न पे आएंगे। रसूलन की जमा क्या है? रुसुलुन, और रुसुलुन जो है इसका पैटर्न क्या है? फ़ुउलुन। आज ही आपने मुझे इसका एक पैटर्न का नाम बताया, आपने कौन सा नाम बताया था किताब का? कुतुबन। कुतुबुन। हाँ, तो रसूलुन की रुसुलुन। तो अब कुतुबुन पढ़ना है और रुसुलुन पढ़ना है, इसको रसूलुन नहीं पढ़ना, यानी मजहूल नहीं पढ़ेंगे। आमतौर पे उर्दू में हम लोग इसको जो पेश होती है इसको ओ की साउंड से पढ़ते हैं, लेकिन ये ऊ की साउंड से पढ़ी जाएगी। तो ये होगा रुसुलुन फ़ुउलुन के वजन पे। इसी तरह से कुतुबुन होगा, ये कुतुबुन नहीं होगा, रसूलुन नहीं होगा। काफिरुन कुफारुन, पैटर्न क्या है? फ़ुआलुन। इसी तरह से ज़िक्रुन अज़कारुन, और पैटर्न क्या है? अफ़आलुन। और उसके बाद आपके सामने 2 डिफरेंट पैटर्न्स आ गए हैं। मस्जिदुन, इसकी जम क्या है? मसाजिदु, और द पैटर्न क्या है? मफ़ाइलु। अब यहाँ पे आपको तनवीन नजर नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये ममनू मिन सर्फ है, यानी वो अस्मा जो तनवीन कबूल नहीं करते। और डिप्टोट, जी बिल्कुल, और उनमें हालत नस्ब और जर में जो है वो ज़बर आएगी, ज़ेर नहीं आएगी। इसी तरह से मिसबाहुन की मिसाल मसाबीहु, और ये जो पैटर्न है ये क्या है? मफ़ाइलु, जैसे मफ़ातीहु, और इसी तरह से और सी कुरान मजीद में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, तमाथीलु और इसी तरह से। तो ये जो पैटर्न्स हैं 2, ये बहुत कॉमन भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसके अलावा बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इसमें कुरान मजीद में जब भी आप लफ्ज़ देखेंगे कि उसके ऊपर यानी तनवीन नहीं है और वो इस पैटर्न पे आ रहा है, जैसे मसाजिदु है या मसाबीहु है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है, जी पूरे मुल्क में आते हैं, सूरह मुल्क में, जी बिल्कुल, बेमसाबीह। जी, तो उसमें आप देखें बेमसाबीहा है तो उसमें ज़ेर नहीं है, क्योंकि ये अस्मा जो है इनमें 2 चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर तनवीन नहीं आती और ज़ेर नहीं आती। ज़ेर आने के 2 रीज़न्स हैं, वो हमने शायद पढ़ी भी हैं, अगर नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा। एक, जब उसके साथ अल लगेगा तो ज़ेर आ जाएगी, और जब दूसरा ये इसको मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी। गालिबन ममनू में ना सिर्फ एक जो उसका पैटर्न है ये भी है कि शायद अलिफ के बाद अगर जो 2 या 3 अगर हरूफ होते हैं तो उस पे भी फिर वो पेश ही होता है, जी, तनवीन नहीं आती। 2 या 3 होते हैं, बिल्कुल जी। तो वो पैटर्न्स जैसे भी आपको आसान लगे याद करना, वो अगर आप पैटर्न को इटसेल्फ लफ्ज़ याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान रहेगा, जैसे मफ़ाइलु और मफ़ाइलु। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसके बाद वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो फिर अलिफ के बाद अगर 2 लेटर्स होंगे तो वो मफ़ाइलु होगा, और अगर 3 होंगे तो वो मफ़ाइलु होगा, लेकिन अलिफ के बाद होने चाहिए। जैसे आइन 1 लेटर हो गया,
या दूसरा हो गया और लाम तीसरा हो गया, और यहाँ पे अलिफ के बाद आइन फर्स्ट हो गया और लाम सेकंड हो गया, तो या 2 आएंगे या 3 आएंगे। जी माशाल्लाह। ये औजान ये 7 हैं या और भी हो सकते हैं मुकस्सर के? मेरे ख्याल में 27 हैं, अच्छा 27 अराउंड, हाँ मेरे ख्याल में है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सारे इस्तेमाल नहीं होते। कुरान मजीद में जो बहुत कसरत से इस्तेमाल हुए तकरीबन 8 से 10 हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ये लास्ट वाले जी ये माशाल्लाह ये यही है, यानी जमा जो मुकस्सर है इसी में आके थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आगे जो है वो जब बंदा सीखता जाएगा तो इंशाल्लाह आसानी होती जाएगी। प्रैक्टिस से आएगा ये, मैं ख्याल है कि जी कौन बिल्कुल, सा हाँ लफ्ज़ किस वजन पे है। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप खुद ही औजान निकालते जाएंगे, आप मतलब अनइंटेंशनली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, लाइक जब आप शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, आप गियर भी देख रहे होते हैं, क्लच भी देख रहे होते हैं, ब्रेक भी देख रहे होते हैं, सामने भी देखना होता है, स्टीयरिंग भी देखना होता है, बट लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर सुकून से जो है आप टेक लगाते हैं और गाड़ी चल रही है और आप जो है वो मतलब आसानी से उसको चला रहे होते हैं। तो लैंग्वेज हो कुछ भी हो, जब फर्स्ट टाइम थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है, गलतियां भी होती हैं, और फिर इंशाल्लाह जब फ्लुएंट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी समरी आ गई, मुस्लिमुन, और जो डुअल है मुस्लिमानी, और जो प्लूरल है मुस्लिमूना। अब ये मुसन्ना और ऊना जो है ये जमा मुज़क्कर सालिम है, मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन, और किताबुन किताबानी और कुतुबुन। तो डुअल सभी का सेम ही होगा, आनी ऐनी ऐनी होगा, लेकिन जब प्लूरल की बात करेंगे तो मैस्कुलिन के लिए ये डिफरेंट होगा, ऊना की साउंड पे आएगा, और फेमिनिन के लिए ये आतुन की साउंड पे आएगा, और जो ब्रोकन प्लूरल होगा वो पैटर्न को फॉलो करेगा। लेसन मेरे ख्याल में हमारा ये मुकम्मल हो गया, और इसमें शायद जी वो नोट जो दूसरा लेसन में उसकी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, उसमें मैंने ऐड किया था, शायद किसी ने कहा था कि आप वो ऐड कर दें, तो उसमें मैंने ऐड किया हुआ था कि जो जमा सालिम होती है वो आमतौर पर सिफात से बनती है, और जो मुकस्सर होती है वो आमतौर पर मटेरियल से बनती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह हम श्योर कि आपने ये बात नोट कर ली होगी। जी उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है या हम उसे कहेंगे हालत है, वो कौन सी है? एराब। जी सही। जी स्क्रीन आपको नजर आ रही है एराब की स्टेटस की? जी सर आ रही है, आ रही है। जी तो इसकी एराब में जो है वो हर इसम की 3 हालतें होंगी, या तो वो हालत रफ में होगा, या हालत नस्ब में होगा, या जर में होगा। तो ये इंग्लिश में भी मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया, या तो वो नॉमिनेटिव केस होगा, और ये जब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस तो ये बात हो रही है जुमला इस्मिया की, या सब्जेक्टिव केस होगा। तो जब जुमला फ़िलिया की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर ये सब्जेक्टिव केस होगा, यानी ये डूअर होगा या सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे ये मुब्तदा होगा। आपको याद है ना कि जो जुमला इस्मिया उसकी 2 हिस्से होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। जी, और जो मुब्तदा का केस होता है वो नॉमिनेटिव होता है, राइट, यानी मरफू होता है, और खबर भी मरफू होती है, दोनों हालत रफ में होते हैं। जी बिल्कुल, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे, लेकिन जब हम वर्ब की बात करेंगे तो फिर हम उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी फाइल कहेंगे। तो वर्ब में फाइल होता है, और नाउन में इसमें या तो वो मुब्तदा होगा या खबर होगा। काइंडली ये भी आप नोट कर लें ताकि आपको यहीं से क्लियर हो जाए कि इनमें फ़र्क क्या है। तो जब भी हम नॉमिनेटिव केस की या नॉमिनल केस की बात करेंगे ना, तो वो कभी भी फेल वर्बल सेंटेंस नहीं होगा, फिर वो हमेशा नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया होगा। और जब भी हम सब्जेक्टिव केस की बात यानी फाइल की बात करेंगे तो वो हमेशा वर्बल सेंटेंस यानी वर्ब से शुरू होने वाला होगा, जुमला फेलिया होगा। जी बिल्कुल। जुमला की कितनी अक़साम है अरबी में? 2 ही अक़साम है। 2 ही अक़साम है, या तो वो इस्मिया होगा या फेलिया होगा। जी वेरी गुड। और इसी तरह से हालत नस्ब या तो वो एक्यूजिटिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव यानी द सेम हियर, यहाँ पे यानी ये जुमला फेलिया में इस्मिया में होगा, और
ये जो है जुमला फेलिया में होगा, यानी मफऊल जो है वो हमेशा फेल के बाद ही आता है। नसब में होगा। जी मफूल बिही, एक्सीलेंट। और हालत जर किसे याद है? जी सर जब इला इला जब हालत मजरूर होगा, ज़ेर होगा जरूर उसका, होगा। और मजरूर नाउन कब होता है? किसी वजह से। हाँ, और वो वजूहात आपको पता है अब ऑलरेडी। हरफ जर हरफ जर आ जाए से पहले अगर हल्फ जार अपने हो बाद या वाले मुदाफ इसम को मुदाफ मजरूर इलैह। कर देता है। या मुदाफ इलैही हो, मुदाफ नहीं, मुदाफ सिर्फ इलैह। मुदाफ इलैही। जी जी, तो या तो उससे पहले हर्फ जार हो या वो मुदाफ जी। इलैही हो, तो वो मजरूर होगा। एक्सीलेंट। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थी रफ़ की, नस्ब की और जर की। जैसे रफ़ की मतलब ये है कि इंसान जब एक्टिव होता है, बिल्कुल उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। नस्ब टू इरेक्ट समथिंग, लाइक किसी चीज़ को गाड़ना, जैसे झंडा गाड़ना। तो जब थोड़ा सा बंदा थक के बैठ जाए तो वो हालत नस्ब में होगा, और जब बंदा बिल्कुल थक हार के लेट जाए तो फिर वो हालत जर में होगा। यानी तो ये बेसिकली 3 स्टेट्स हैं, इसीलिए हम इसको स्टेटस कहते हैं। तो ये नाउन की 3 स्टेट्स हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमें बेसिकली हमें एंडिंग से या स्टेट से पता चलता है कि उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली नाउन का फंक्शन क्या है। स्टेट, ये जो इराब होता है, इससे क्या लफ्ज़ की मीनिंग में भी तब्दीली आती है? नो नहीं, सर, इसकी मीनिंग में तब्दीली हाँ, नहीं उसके सिर्फ स्टेटस में तब्दीली आती है। हालत बिल्कुल में। जी, जैसे जैसे मुहम्मदुन, तो मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। जी, तो माना तो सेम रहेगा, लेकिन उसका स्टेटस जो है वो तब्दील होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी नुक्ता, इंशाल्लाह ये अगर आपको क्लियर हो जाए ना, तो बहुत सारी क्योंकि इराब की बात करते रहते हैं, और हम उर्दू में तो इराब से मुराद सिर्फ जेर ज़बर और पेश ही लेते हैं, राइट। लेकिन अब अरबी में हमें पता चल गया कि जेर ज़बर और पेश तो हो सकती है, लेकिन हमने जेर ज़बर और पेश को ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि एंडिंग को फोकस करना है कि उसकी एंडिंग क्या है। और आगे ये आपको इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मेरे ख्याल में यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे उर्दू में तो हम कहेंगे जी, एंडिंग से ये पता चलता है कि वो डूअर है इसम, या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, या इस तरह। या लेकिन मुब्तदा है या मतलब खबर है। जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जैसे सर अब वो उर्दू में फेल अगर हम जाता है ना, करने वाला और किस पे किया जाए। जी, जिस पे किया गया, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब जब हम उर्दू में इराब लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे? काफ के नीचे जेर लगाएंगे और ता के ऊपर ज़बर लगाएंगे। और आम तौर पे उर्दू में एंडिंग हम उसकी केयर नहीं करते, ना ही पढ़ी जाती है। तो हम किताब कहेंगे, हम इसे उर्दू में किताबुन नहीं पढ़ते, मैंने तो शायद कभी नहीं पढ़ा। तो एंड में यानी ये क्या होगा? साकिन होगा। लेकिन अरबिक में क्या होगा? ये होगा किताब, जी, किताबुन किताबन, और किताबन और किताबें। किताबिन। किताब जी, तो ये इसकी। और किताबन में आपने एक और चीज भी नोट करनी है, वो कौन सी चीज है? 2 ज़बर के साथ एक अलिफ हालत ये एक अलिफ का है। इजाफा होता है। अलिफ लगेगा। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। और ये हर नाउन के साथ होता है क्या? नहीं, नहीं सर इसमें तो सही नहीं। पाई ओके, जाती कौन से नाउन के साथ नहीं होगा? है। जो नेम्स के साथ तो मोहम्मद, नहीं, मोहम्मदुन। मोहम्मद के साथ होगा, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? मोहम्मदन के साथ बिल्कुल होगा। हाँ, जिसमें होता होगा। जो इब्राहिम ममनू मिन सर, उसमें जिसके ना आखिर एक में तो हमजा होगा। नहीं, ममनू मिन हमजा सर्फ पे तो दो ज़बर आती नहीं है ना। ममनू मिन सर्फ पे तो 2 ज़बर आ ही नहीं सकती। ममदूदा और जिस नाम मकसूरा के में आखिर नहीं में होगा। हमजा होगा तो उसके बाद अलिफ नहीं लगेगा। दोबारा बताइए। होगी और जिस नाम के आगे हमजा होगा तो फिर उसके बाद अलिफ नहीं लगेगा, हमजा के बाद। हाँ, एक ये यानी और दो से जैसे समाउन है, तो ये 2 हैं एक्सेप्शंस जो आपने नोट करनी है। एक तो हम जो है वो ता मरबूता के साथ अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा जन्नतन। इसके ऊपर सिर्फ 2 ज़बर आएगी, इसके अंदर और कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर हमजा पे ख़त्म हो रहा है और हमजा से पहले अलिफ है, तो फिर उसके आगे भी अलिफ का इजाफा नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा समाअन। ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ये आपने अब लिख लेनी और ये याद करनी है आपने। जी, इसके अलावा जितने भी नाउन हैं उसमें मंसूब में सिर्फ हालत नस्ब में एक अलिफ का इजाफा किया जाता है, और उसकी रीज़न यही है कि ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें मजरूर से। और किताबिन, उसमें जो है वो 2 ज़ेर आ जाएगी। ओके, उसके बाद लफ्ज़ुल जलाला, इससे क्या मुराद है?
अल्लाह सुब्हानहू ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम। अल्लाह ताला का नाम। जी अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम। और जब भी हम इराब की बात करेंगे तो हम उसमें कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, बल्कि तज़ीम अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला की तज़ीम करते हुए तो हम कहेंगे कि लफ्ज़ुल जलाला जो है या इस्मुल जलाला भी कहा जाता है, वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। जी जैसे अब हमारे सामने हम कहेंगे अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लफ्ज़ुल जलाला जो है मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। और इसी तरह से मुहम्मदुन, अब यहाँ पे देखें मुहम्मदुन, और इसमें मुहम्मदन में अलिफ का इजाफा हुआ है, और फिर मुहम्मदिन। और इससे मुराद अगर हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो फिर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। और अगर इससे मुराद कोई आम आदमी है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद है या किसी आपके सामने का नाम मोहम्मद है, तो फिर ऑफ कोर्स हमें दुरूद नहीं पढ़ना। लेकिन जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी तो आप, क्योंकि हदीस शरीफ है ना कि रागिम अनफुन रजुलन, कि वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मेरे ऊपर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो उसका नाक मिट्टी में मिल जाए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह से हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, जैसे अल्लाहु अकबर और इन अल्लाह खबीरुन और बिस्मिल्लाही। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लफ्ज़ुल जलाला की 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे मरफू है, यहाँ पे मंसूब है और यहाँ पे मजरूर है। तो अब यहाँ पे जी यहाँ पे इसका स्टेटस तो चेंज होगा लेकिन माना तब्दील नहीं होगा। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखें मुहम्मदुन, और जब तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर इसी तरह से अशहदु अन्ना मुहम्मदन, तो यहाँ पे देखें मुहम्मदन में अलिफ का इजाफा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेट्स तो लफ्ज़ मुहम्मद की चेंज हो रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका माना तब्दील नहीं होगा। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या है? माना में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह ये अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसमें इंशाल्लाह। जी यहाँ पे कुछ हुआ है, आई डिडंट सी यहाँ पे क्या है, हो सकता है। चलिए इंशाल्लाह आप मेरे ख्याल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ज़ैद ने हामिद की मदद की। लेट्स सी कि किस किस को याद है ये वाला सेंटेंस। सआ ज़ैदुन हामिदन। ज़ैदुन हामिदन। माशाल्लाह तबारकल्लाह जी। सआदा युसाइदु मुसाअदतन का मतलब होता है मदद करना, और ज़ैदुन मरफू है, डूअर ऑफ द एक्शन है। और नसरा इज यूज्ड फॉर बिगर हेल्प। नसरा जैसे बड़ी किस्म की, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मदद होगी ना, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो जनरली नसरा यूज करते हैं अरबिक जब क्लास में, ये सादा नहीं पढ़ाते जनरली। जैसे मैंने अर्ज किया कि जनरली नसरा जो है वो बिगर हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है जी। जैसे आपकी किसी ने हेल्प की है ना, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नसरानी बिलालुन या नसरानी या नसरतनी ज़ैनबू। आप कहेंगे साअदनी बिलालुन या साअदतनी ज़ैनबू, क्योंकि साअदा जो है वो मुसाअदा से मुराद मतलब म्यूचुअल हेल्प, जो एक दूसरे की हेल्प करना होती है। ये इंशाल्लाह जब आप बुक 3 में अल्लाह करे कि हम इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे आप देखेंगे तो वहाँ पे ना हम ये जो फेल है, फेल की हर फेल का जो एक बाब है, हर बाब की कुछ खुसूसियात होती हैं। जैसे ये सादा युसाइदु मुसाअदतन से मुराद होता है म्यूचुअल कोऑपरेशन, जिसमें 2 बंदे शामिल हों, और आमतौर पे एक फाइल होता है, रिसीवर डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और एक रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जी जैसे कातला युकातिलु मुकातलतन, तो कातला जैसे लड़ाई भी होती है तो उसमें 2 होते हैं। इसी तरह से जाहदा युजाहिदु मुजाहदा, जाहदा तो उसमें भी जो है वो 2 लोग शामिल होते हैं। जैसे नफ्स के साथ भी जिहाद करना है तो उसमें भी आप और आपका नफ्स, तो 2 चीज़ें आमतौर पे 2 चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए सादा का। लेकिन नसरा में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो कुरान मजीद में जहाँ भी आप देखेंगे ना, तो वो जो बड़ी हेल्प होगी उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑन अ ग्रेटर लेवल और अ बिगर लेवल। लेकिन समझने के लिए, यानी अरबी समझने के लिए
میرے خیال میں اگر ناصرہ یوز کر بھی لیا جائے تو کوئی, کیونکہ جو مدارس میں عام طور پہ جو ورب استعمال کیا جاتا ہے کون سا کیا جاتا ہے, کسی کو یاد ہے یا کسی نے جو مدارس میں لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ نصرہ ہی کرتے ہیں زیادہ تر. ناصرہ نہیں یاد نہیں نہیں نہیں, آپ نے پھر مدارس کی عربی نہیں پڑھی ابھی تک. نہیں, سوال دوبارہ کریں. ضاربہ استعمال کیا جاتا ہے, مارنا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. جی ضرب ضربہ حامد جو ہے نا, جی جی جی, ضرب تو وہ بلکہ اس پہ بہت زیادہ نا اعتراض بھی لوگوں نے کیا, اسپیشلی جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں شروع میں, کہ یہ مدارس کے جو عربی میں مار کٹائی ہی کیوں ہونی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا آپ چاہیے. ضرب میں کہہ رہے ہیں ضربہ. ضربہ, جی جی, ضربہ یعنی ضربہ, جی جی. تو وہ ٹو ہٹ سم ون, اور یہ ویسے بہت یوز سیکھنے ہوتا ہے. سکھانے کے لیے بہت ہی کامن ہے, اور قرآن مجید میں تو ماشاءاللہ اس کے 8 سے 10 ڈفرینٹ معنی استعمال ہوئے ہیں. بائی دا وے صرف مارنا نہیں ہے, بلکہ اس میں ضربہ قرآن مجید میں جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ معنی میں استعمال ہوئے. جی جی جی, تو اوکے, تو یہ پہلے کا سیو ہوا ہے میرے خیال میں. اوکے, اس کے بعد نیکسٹ, اس کے بعد حامد نے زید کی مدد کی, تو یہاں پہ اب ڈوور اور ریسیور جو ہے فائل اور مفعول تبدیل ہو گئے, رائٹ, یا سیم ہے؟ ایکسکیوز می سر, سیم ہے, جی سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں ضمہ اور فتحہ کا فرق ہے. جی بالکل. تو جو یہ, اور یہ کون سا سینٹینس ہوگا, یہ جملہ فعلیہ ہوگا, کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. جی بالکل. تو جملہ فعلیہ میں دو ہی اس کے حصے ہوتے ہیں, مطلب فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے, اور کبھی اس میں مفعول ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر وقت ریسیور آف دا ایکشن ہو. جیسے آپ کہتے ہیں ذہب بلال, بلال گیا, تو اس میں آپ کوئی ریسیور نہیں ہے. لیکن سم ٹائمز کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس میں ریسیور کا ہونا ضروری ہے. جیسے یہاں پہ آپ سعد حامد, اس کے بعد آپ اس کو انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا, اس کے بعد جس کی مدد کی گئی ہے اس کو مینشن کرنا ضروری ہے. تو ہم کہیں گے سعد حامد زیدن. اور بلال نے میدان میں حامد کی مدد کی, یہ سینٹینس کسے یاد ہے؟ سعد بلال محمودا فی ملبی, فی الملعب. جی, تو اب یہ ملعب جو ہے یہ جار مجرور ہو جائے گا. ایکسیلنٹ. اوکے, قرآن مجید کی اگزامپل کو یاد ہے آپ کو؟ قتل داؤد جالوت. دوبارہ پڑھیے. قتل داؤد جالوت. احسنتی, یس. قتل داؤد, اس کو تھوڑا کھینچ کے آپ پڑھیں گے, داؤد جالوتا. جی جی, تو اب قتل جو ہے یہ ورب ہو گیا, فعل ہو گیا یعنی, اور داؤد علیہ السلام یہ جو ہے وہ ڈور یعنی فاعل, اور جالوت جو ہے یہ مفعول بھی, یا مفعول ہم کہیں گے, جی, دا ریسیور آف دا ایکشن. تو یہ ہو جائے گا مفعول یا آبجیکٹ, ہم اس کو کہیں گے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. جی بالکل. اب یہاں پہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ اگر خدا نخواستہ ہم کیس اینڈنگز چینج کرتے ہیں, ناٹ اونلی دس ایگزامپل, قرآن مجید میں کہیں بھی, تو پھر وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بہت دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے, جلدی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد لاسٹ چیز, اسم کی حالتیں جو ہیں. کرنے کے بعد یہ جو آپ نے ایگزامپل دی, اس کو بہت سکون سے میں نے سارا سمجھا تھا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, کیونکہ یہ بہت ایک ہوتا ہے نا کہ بہت اچھی چیز مل گئی تھی کہ کس طرح پیش کو اور زبر کو ہم ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں, اتنا پورا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے اگر ذرا سا. جی جی بالکل, جی بالکل. ہاں, تو بس آپ نے جب اسٹیٹس کی بات کی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ معنی چینج نہیں ہوتا. میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اعراب میں اگر ہم چینجنگز کرتے ہیں تو بہت معنی بدل جاتا ہے. اگر جی آپ بالکل, زبر کو یا پیش پڑ جاتے ہیں یا ایون لکھ بھی دیتے ہیں, تو جس طرح یہی مثال آپ دے رہے ہیں, تو یہ تو پورا ٹوٹلی معنی چینج ہو گیا. تو آپ کس مطلب اس کو کانٹیکس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معنی نہیں بدلتا؟ جیسے لفظ داود ہے تو وہ داود ہی رہے گا نا, اور جالوت جو ہے وہ جالوت ہی رہے گا. لفظ کا معنی نہیں بدلتا, لفظی معنی نہیں بدلتا, لیکن جی, لفظ, لیکن اس اسم اس کی حالت یعنی اسٹیٹس حالت تبدیل ہوگا نا.
یعنی وہ ریسیور ہو جائے گا یا ڈوئر ہو جائے گا جی یا ایکشن کا؟ جی جی تو جی اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی بارک اللہ فیکم، سمجھ میں آ رہا جی بھائی آنکھ جیسے داود ہے نا تو یہ اگر یہاں پر حالت نصب یا جر میں کس طرح ہوگا اس کی کوئی مثال دے دیں، تائے مربوطہ کے ساتھ کسی اسم کی. تائے مربوطہ کے ساتھ جی جیسے زارت فاطمہ تو فاطمہ نے وزٹ کیا. آگے آپ جو بھی لگانا چاہیں، اگر آپ کسی مرد کا نام جیسے بلال تو وہ ہو جائے گا بلالن، یا اگر آپ کیونکہ وہ وربل سینٹینس اس میں آپ کو فعل تبدیل کرنا ہوگا، تو اگر آپ ڈوئر جو ہے فیمینن بنانا چاہتی ہیں تو پھر اس کو آپ کے لیے فیمینن کا لفظ جو ہے وہ جو ورب استعمال کرنا ہوگا. جیسے اب اگر یہی ہے یا ہم ضربہ لے لیتے ہیں یا نصرہ لے لیتے ہیں، تو نصرہ سے یا ساعدہ لے لیتے ہیں تو اب ہم کہیں گے ساعدت، یہ فعل تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا ساعدت، اور اس میں جو ڈوئر ہے اگر وہ فاطمہ ہے تو ہم کہیں گے ساعدت فاطمہ تو، اور اگر اس نے ہیلپ کی زینب کی تو یہ ہو جائے گا زینہ. جی زینب کی کیا اینڈنگ ہوگی؟ زینبا زینبا جی زینبا، کیونکہ مدد کرنے والی فاطمہ ہے اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ زینب ہے. اگر اب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ زینب نے فاطمہ کی مدد کی تو اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، زینب آپ نے زینب فاطمہ جی ویری گڈ زینب فاطمہ. اچھا اگر آپ اس کی جگہ تبدیل نہ بھی کریں نا، جی اگر آپ جگہ تبدیل نہ بھی کریں تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ پیش اور زبر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈوئر جو ہے وہ زینب ہے اور جو ریسیور ہے وہ فاطمہ ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ پیش اور زبر سے، اعراب سے. جی جی اب کیا فاطمہ اور زینب کا معنی تبدیل ہوا؟ نہیں، فاطمہ فاطمہ رہی اور زینب زینب رہی. گر جانے سے میننگ بدلتی نہیں ہے کیا سر؟ اچھا نہیں، دونوں کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے نا. اب فاطمہ اگر زینب مدد کرنے والی ہے تو زینب کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ دینے والی ہے یا مدد کرنے والی ہے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ فاطمہ ہے تو فاطمہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس نے مدد لی ہے. تو ایک عمل کرنے والی ہے اور ایک جس کے ساتھ مطلب جس نے ریسیو کیا ایکشن کو، جس کے اوپر عمل ہوا ہے وہ ہے. تو زینب یہاں پہ کام کرنے والی ہے اور فاطمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کام ہوا، یعنی اس نے وہ چیز ریسیو کی ہے، وہ ریسیور ہے اس کی. مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اعراب سے لفظی اسم کے معنی نہیں بدلتے لیکن اعراب سے جملے کے معنی بدل جاتے ہیں. ہاں جملہ تو تبدیل ہو جائے گا، بالکل ڈیفینیٹلی تبدیل ہو جائے گا. حالت ہے وہ بدل جاتی ہے. ہاں حالت تبدیل ہوگی نا. اسٹیٹ بیسیکلی اسٹیٹس، اب دیکھیں نا سوشل اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ میریڈ ہے تو اس کا سوشل اسٹیٹس میریڈ ہوگا، اور ایک جو غیر شادی شدہ ہے وہ ان میریڈ ہوگا، رائٹ. اب اگر آپ نے ان میریڈ کا سوشل اسٹیٹس چینج کرنا ہے تو ہی ہیز ٹو گیٹ میریڈ، رائٹ. تو جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ میریڈ ہو جائے گا، اب اس کا سوشل اسٹیٹس چینج ہو گیا. لیکن بندہ تو وہی رہا نا. مطلب اگر وہ لیٹ سے کہ زید تھا تو زید شادی سے پہلے بھی زید تھا اور اس کے بعد بھی زید ہے، یعنی وہ تو زید ہی رہے گا لیکن اس کا ایک سوشل اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، رائٹ. سر مجھے وہ ان میریڈ سے تو آپ نے کہا تھا کہ گول تا کے بعد الف نہیں آتا، وہ ذرا مجھے دوبارہ سمجھا دیں. کیونکہ جیسے جنتن ہے نا یا فاطمہ پہ تو تنوین نہیں آئے گی، سوری. جیسے جنتن ہے اور اگر آپ کہنا چاہتی ہیں جنتن، یعنی اگر وہ منصوب ہے کسی وجہ سے جنتن ہے تو پھر اس کے اوپر صرف 2 زبر آئے گی، آپ الف کا اضافہ نہیں کریں گے. Is this clear؟ جی سر. جی اوکے الحمدللہ. تو اب آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ اعراب کا کافی کلیئر ہو گیا ہے. اگر اس میں اور بھی کچھ ہے چیز جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیں. اور آخری چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ اسم کی جو حالتیں ہوتی ہیں مرفوع منصوب اور مجرور ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کیا اس کی شکلیں بھی تبدیل ہوتی ہیں؟ جیسے کیا ہمیشہ ہم تنوین ہی استعمال کریں گے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسماء ایسے ہیں جو تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ جی جب ان کو جمع بنائیں گے
تو ان کی شکل چینج ہوگی نا جب جمع بنائیں گے. جیسے مسلمون مسلمون مسلمین. جب ٹھیک ہے, اونا اور اینا کی آواز آئے گی تو شکل چینج ہوگی ساؤنڈ کی وجہ سے. ساؤنڈ کی وجہ جی وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا مطلب ان کی کچھ اور کیٹیگریز بھی ہیں, لیکن کیا مطلب منصرف بھی ہو سکتا ہے؟ لگائیں گے نا, اگر ہم الف لام لگائیں گے تو یہ اعراب ہلکا ہو جائے گا, تنوین ہٹ جائے گی, تنوین قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ 3 جو اقسام ہے وہ کون سی ہیں؟ ناؤن یا تو منصرف ہوگا جی, منصرف ہوگا یا مبنی ہوگا. ایکسیلنٹ. تو منصرف کون سا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل جو ہوتے ہیں, جو حالت میں بدلتے ہیں, جو ہر حالت میں بدلتا ہے. ویری گڈ. جیسے یہاں پہ ہے, یعنی اس کی اعرابی حالتیں تو ہمیشہ 3 ہی ہوں گی, یہ نہ 4 ہوں گی نہ 2 ہوں گی, وہ ہمیشہ 3 ہی ہوں گی, لیکن اس کی شکلیں تبدیل ہوں گی. تو شکلوں سے کیا مراد ہے کہ اگر تو وہ منصرف ہوگا یعنی فلیکسیبل ہوگا تو وہ مسلمن, مسلمان اور مسلمن, تو اس میں 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر آئے گی. اور اس طرح سے اگر وہ مؤنث ہوگا تو مسلمتن, مسلمتن اور مسلمتن. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہے. تو سر یہ ہو باقی گیا. مذکر کے ساتھ کیا ہمیشہ الف کا اضافہ لازمن کریں گے منصوب میں؟ جی بالکل. جیسے اب محمد کا بھی آپ نے دیکھا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ, ہاں اگر اس کے ساتھ جی تو اس میں اضافہ ہوگا بالکل, سوائے تائے مدورہ یا حمزہ پہ اگر ختم ہو جی جائے حمزہ اگر ہوگا تو اس کے بعد نہیں ہوگا. جی اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے, یہاں پہ ہم نے سنگولر ناؤن دیکھا, یعنی مفرد یا سنگولر کی بات کی ہے. اور جو پارشلی فلیکسیبل ہوگا یعنی جو غیر منصرف ہوگا وہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرے گا. تو اس میں کیا ہوگا؟ ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. اب یہاں پہ زیر نہیں آئے گی. جیسے اس کی ایگزامپل, جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جی تو اب علی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد زیر آنی چاہیے, کیونکہ جی, لیکن اسی لیے ہم غیر منصرف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. سرٹن کنڈیشنز ہیں, 2 کنڈیشنز, جب اس کے ساتھ ال لگ جائے یا وہ مضاف ہو تو وہ انشاءاللہ وہ ہم نے پڑھی ہے میرے خیال میں لیسن نمبر 5 میں یا 4 میں ہم نے پڑھی ہے وہ. اور اسی طرح سے مؤنث اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی زینبو, زینبہ, زینبہ. اور زینب کے اوپر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی کیٹیگریز آلریڈی پڑھ لی ہیں. غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز کون کون سی ہیں, یاد ہیں کسی کو؟ سر کیا پوچھا؟ غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں, کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ غیر منصرف میں جس طرح جو تھے جو غیر عربی نام ہوتے ہیں. جی عورتوں کے نام, جی کسی نے لکھا ہے, جی بالکل. اس کے بعد جی جی اس کے علاوہ عورتوں کے نام ہیں, ملائکہ کے نام, جی فرشتوں کے نام, جی فرشتوں کے نام, ملکوں کے نام, شہروں کے نام, جی اور ایسے مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون آ رہا ہے, اور جن کے مردوں کے نام جن کے تا مربوطہ لگتا ہے آخر میں. ماشاءاللہ. تو مردوں کے نام جو جی جو الف نون جن میں ہوگا یا وہ تا مربوطہ پہ ختم ہوں گے, ٹھیک ہے. جن کے تا مربوطہ الف نون بھی, جی عثمان جی ہے, جی جیسے جی عرفان ہے, جی عمران ہے, جی غیر مسلم نام یعنی نان عربک, عجمہ یعنی نان عربک, جی جی جی. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پارشلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. رنگوں کے نام بھی آئیں گے اس میں, جی جو جی دونوں میسکولین اور فیمینن دونوں, جی بالکل, کیونکہ وہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں. اور مبنیون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ 3 اعرابی حالتوں میں ایک شکل اختیار کرتے ہیں, یعنی یہ مرفوع, منصوب اور مجرور میں ان کی شکل ایک ہی ہوگی. جی جیسے موسیٰ, موسیٰ اور موسیٰ, اسی طرح سے بشرا, بشرا اور بشرا. جی تو یہ مرفوع, منصوب اور مجرور 3 حالتیں ہو گئی. اب انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ لیسن کرنے کے بعد ہماری حالت بھی مرفوع ہی ہوگی یا مجرور ہو جائے گی؟ نہیں انشاءاللہ مرفوع ہی رہے گی انشاءاللہ. تو الحمدللہ انشاءاللہ ابھی 2 دن ہیں ہمارے پاس, تو ہم جو ہے وہ جو لیسنز ہیں نا ہمارے آگے, ان کے ہم صرف ہینڈ آؤٹس ڈسکس کریں گے. ظاہری بات ہے وہ ہم نے جو ایکسرسائزز ہیں وہ آلریڈی کی ہوئی ہیں, رائٹ.
تو وہ ہینڈ آؤٹس ہم جب ڈسکس کر لیں گے ان کے جو مین پوائنٹس ہیں تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے پہلے 5 لیسنز میں پڑھا ہوا کیا ہے، تاکہ جب ہم 6ٹا لیسن استعمال شروع کریں تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہ ہو. ہوپ فلی انشاءاللہ آپ نے حسن ظن رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، بٹ ان کیس اگر نہیں پڑھے تو آپ کی میری سب کی ریویژن ہو جائے گی. جی بارک اللہ فیکم. اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإیاکم، بارک اللہ فیکم.